Hey everyone, welcome back to News Ready, and I'm your friend Chetan Singh Chauhan. Today I have got something really special for you. I had the absolute privilege to sit down with the stunning Huma Qureshi and talented Avantika Dasani and the charismatic Naveen Kasturia to talk about their upcoming series, Mithya the Darker Chapter. This web series is going to be premiered on 1st November this Diwali only on Z5 OTT platform. We talked about the characters in the show, the intense psychological twist, and what makes this season even darker and more thrilling. You definitely don't want to miss this conversation. So stay tuned with Huma Qureshi. आपने सीजन 1 देखा है? हाँ, तो सीजन 1 में जो मेरा किरदार है, कैरेक्टर है, वही है। कैरेक्टर नाम जूही है। जूही एक प्रोफेसर है, हिंदी प्रोफेसर है और एक लेखक भी है। और सीजन 1 में जैसे वो प्रोफेसर होती है और अवंतिका उसकी स्टूडेंट होती है, कैसे ये मिलते हैं और कैसे इनकी दोनों की जिंदगी एकदम एक अलग स्पिन में जाती है। एंड वो डिस्कवर करते हैं एक्चुअली वो खाली प्रोफेसर स्टूडेंट नहीं है, बहनें हैं एक्चुअली। एंड सीजन 1 में तो पता हो ही चुका है। सीजन 1 हैज बीन आउट फॉर मोर देन 2 इयर्स। तो अब वही कहानी आगे जाती है और उसी कहानी में अब नए किरदार आते हैं, जैसे नवीन जी ने हमारे शो को ज्वाइन किया और नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं और हाँ, कैरेक्टर भी बदलते हैं, उनकी ड्रीम्स होप्स बदलते हैं और सब लोग जो है अब अलग ही एक कश्मकश में है कि अब वो डू और डाई वाली बात है कि अब या तो अब मरना ही पड़ेगा और इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो वो In season 1, there was a issue of plagiarism of a book. जी That issue is continued in. Absolutely, sir. That issue is totally continued. I think plagiarism is a very, very serious offense. And in season 1, you saw how I accused her of plagiarism. And little bit of a spoiler alert, season 2 is maybe the tables have turned. Means, what is uniqueness in this season 2, apart from being a new introduction? Oh, lots of unique things. I think when season 1 जब कोई शो का सक्सेसफुल हो जाता है और इतना प्यार मिलता है जैसे हमें मिला, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि सीजन 2 और भी बेहतर होना चाहिए। जो चीज़ें लोगों को पसंद आई हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, वो सारी अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, उसमें और कैरेक्टर्स और सस्पेंस और थ्रिल और एक्शन, इसमें काफ़ी एक्शन भी है, तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे आई थिंक। And also it's this the first season is introducing these characters, introducing this world. Now the audiences know what everything is about, who these people are. So we have to really drive it higher, have the stakes higher, and see where they take us. There were a lot of things that went wrong in these people's lives in the first season. It only goes downhill. But that is exactly what's exciting for the audiences to see. Avantika, you have heredited the genes of being a star kid. How was working with Huma, being a pro actor? Was the Me being whatever has nothing to do with the fact that I was working with an absolute star. Aww. And I was extremely lucky as a newcomer, as a first time actor, to have someone like her to perform with, to work with, because she was the one who showed me the ropes. She was the one who was very okay with someone making silly mistakes, and instead of making me feel bad about it, she made fun of it, which was really good. Because तब आपको लगता है कि आप घर में हो, you know, आपके भाई आपको ऐसे मजाक उड़ाते हैं और ये सब करते हैं, तो आपको एकदम comfortable feel होता है. And that's how I felt with her. So I could not have asked for a better co-actor. आई थिंक नहीं, वो सही बात है, चाहे आप इंडस्ट्री किड हो या इंडस्ट्री किड ना हो, काम तो सबको करना पड़ता है, मेहनत भी सबको करनी पड़ती है और मुश्किल भी उतना ही होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बचपन में आपको कोई घुट्टी पिला दी जाती है कि अच्छा अब आपको सब कुछ आ गया है। तो आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, अवंतिका बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है अपने काम को लेके, तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर आई थी और उनको लगा था कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एंड आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड। So I used to always keep pulling her leg कि चल इट्स ओके, गलती हो भी जाती है तो सॉरी बोलने का और आगे करने का।
I think that's what we did really. Yeah. Huma ji, you have done everything on the blog. That means you have done modeling, you have done TV show, commercial ads, Tamil films, South Indian films, you have done music video, films, web series. कुछ ऐसा है जो आपके जहन में हो कि ये बाकी रह गया? Maybe a Gujarati film? I was about to ask that only. Yeah, I'm sitting in Ahmedabad, so why not? I think नहीं, I'm very greedy as an actor. I feel मेरे को सब कुछ करना है and मुझे बचपन से ये आदत है कि जब मुझे कोई चीज़ बोली जाती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, मुझे लगता है क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती? Because बचपन से I've been a reader, so मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ about other people कि कैसे वो businesses करते हैं या कैसे वो कोई achievement करते हैं, कोई athlete. तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी लोगों ने हमारे आसपास जैसे हम जो पढ़ते हैं अखबारों में या टीवी में देखते हैं वो सब जब कुछ जो हासिल कर पाते हैं किसी मकाम पे पहुंचते हैं वो सब इंसान के ही बच्चे हैं तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सो आई फील लाइक एज एन एक्टर आल्सो आई एम वेरी ग्रीडी आई वांट टू वर्क विद everybody I want to work in all the industries you know and I'm lucky that I get so many opportunities and get to work with such amazing wonderful people actors आपने एक और सी वेब सीरीज की है महारानी. That role is an urban rural woman और ये रोल पूरा अर्बन है. How difficult or challenging was doing both the roles, both the different characters? Both are very difficult क्योंकि दोनों ही मैं नहीं हूँ. ना तो मैं वो अनपढ़ बिहार की महिला हूँ जिसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और ना ही मैं कोई हिंदी की प्रोफेसर हूँ. मैं हूँ और मगर जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपना और थोड़ा सा लेखक का, थोड़ा डायरेक्टर का, थोड़ा बाकी लोगों का इसमें डाल सकूँ. इसलिए हर कैरेक्टर यूनिक होता है. यू नो आई थिंक अगर दो एक्टर्स को सेम कोई शेक्सपियर का रोमियो जूलियट में अगर सबको दो एक्ट्रेसेस को मुझे अवंतिका को जूलियट का रोल दिया जाए तो हम दोनों बहुत अलग अपने तरीके से करेंगे. कैरेक्टर वही रहेगा बट उसका जो उसमें रंग आप भरोगे. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत मजा आता है कि मैं एक अनपढ़ महिला और एक हिंदी के प्रोफेसर का रोल दोनों निभा सकती हूँ अच्छे से. जैसे आपने अभी बताया यू गिव सम इनपुट्स टू राइटर्स और डायरेक्टर्स योर ओन बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस. क्या वो इम्प्लीमेंट होता है डायरेक्टर अलाउ यू टू? But that's the job of an actor ना सर. Yes. एक एक्टर का काम ही यही होता है कि आपको जब कोई पन्नों पे कोई लाइनें दे दी जाती है तो आप उसमें जान फूको. अगर आप जान नहीं फूकोगे तो आप वो लोग बोलेंगे खराब एक्टिंग की है. सो एक्टर का काम ही होता है अगर मैं बोलूँ कि अरे भूख लग रही है और टाइम क्या हो रहा है तो अभी आपने लिख तो दिया पर बोलना तो मुझे है ना और उसके बीच का सेंस बनना चाहिए. अगर वो सेंस बन गया तो आप अच्छे एक्टर हो दोनों लाइनों के बीच का और सेंस नहीं बना तो आप खराब एक्टर हो. क्योंकि एक्टिंग आई फील इज नॉट जस्ट ओनली राइटिंग और डायलॉग्स, इट्स आल्सो इन बिटवीन. आप एक जीवन जीते हो, आप उसमें जान फूकते हो एंड उसमें हाँ बहुत दफे होता है कि आपका और डायरेक्टर का विजन अलाइन नहीं करता है. दैट्स परफेक्टली ओके, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस. आई बिलीव डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. तो वो जो बताएंगे हमारा काम है कि एज स्पेशली इन फिल्म एंड टेलीविजन कि उनके विजन को हम एग्जीक्यूट करें. थिएटर क्योंकि मैंने थिएटर भी किया है, आपने मिस कर दिया. तो उसमें आई थिंक एक्टर्स डिक्टेट. एक बार आप पहुंच गए स्टेज पे तो फिर आपको कोई कुछ देन इट्स योर प्लेइंग फील्ड, देन इट्स योर अरीना. बट या इन फिल्म इन टेलीविजन योर डायरेक्टर, editor, your cinematographer, each and every person on a film set is so important. Or I think as actors we all are so grateful to every single technician because they make us look so good. Like on our film, like on our show, we have Goldie, you know, we have Z5, we have Kapil, we have all the writers, we have all the amazing actors, technicians, editors. They all come together to make us look good. और picture बनाना बहुत मुश्किल होता है, सीरीज बनाना बहुत मुश्किल होता है. बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है. And it's a very collaborative process. No, you can have whatever in your head, but only the director knows the whole picture and what everyone is doing and what everyone's part of. And at the end of the day, whatever you do, the whole thing has to work together. तब audiences को मजा आता है. ये सस्पेंस है इनका रोल. स्पॉइलर. ये ऐसे सोच रहे हैं. अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. नहीं आपने अचानक से मुझे पकड़ भी लिया तो मुझे भी मैं भी और घुमा तो यार मेरा जैसे अगर आपने ट्रेलर देखा है
तो अभी कोई कह भी रहा था कि यू नो पिछले जैसे प्लेजरिज्म के ऊपर था सीजन 1, तो ये सीजन 2 की शुरुआत भी इससे होती है, जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं कि मैं आई थिंक ट्रेलर में जो आपने देखा, मैं हुमा पे आरोप लगाता हूँ कि कुछ उन्होंने ऐसा किया है। बाकी फिर हाँ, आगे कहानी में मेरा किरदार कैसे प्ले आउट करेगा वो अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बट हाँ सीधा नहीं है, सीधा सरल आदमी नहीं है, कुछ उसके क्या इंटेंशंस हैं और क्या मोटिव्स हैं वो अभी क्लियर नहीं है। तो हाँ थोड़ा शेडी है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं। तो हाँ चैलेंजेस इस बार भी 6 एपिसोड में खत्म हो गया एपिसोड। 6 एपिसोड इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। मैंने कुछ वेब शोज करे, कुछ 1-2 फिल्में भी करी। शो एस्पिरेंट्स बहुत पॉपुलर है, शो है, बहुत हिट शो है, हम पिक्चर्स बहुत बढ़िया शो है। तो हाँ, और मतलब हाँ मैंने कुछ शोज करे हैं, काफी मतलब शोज करे हैं, और तभी मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह मिली है इनके साथ। और हाँ मतलब शोज फिल्म्स करे हैं, उससे पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, और इनफैक्ट कई सालों पहले, पता नहीं हुमा को याद होगा या नहीं, अब तो हुमा शायद प्रोड्यूसर, शायद पता नहीं, दिल्ली में आप एक थिएटर प्ले प्रोड्यूस कर रहे थे। Yes, of course. सो मैंने उसके लिए टेस्ट दिया था और मैं आई वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर दैट, सो आई वाज एक्टिंग। हाँ तो मैं उस प्ले का पार्ट था which Huma was producing and I was acting in it. I don't think you were acting. I was not acting. So I hope फिल्मों के साथ भी ऐसा हो कि Huma कुछ प्रोड्यूस करे और मैं एक्टिंग करूँ। So हाँ तो ऐसा। So Huma ji, as you said, you are giving tips. So when we will see, आप तो सबके सामने मुझे मिसकोट कर रहे हो। हाँ पहले तो पीछे you are giving tips. as you said, No, it's a collaborative. Okay. I don't think anybody. so when we see Huma Qureshi as a director. Oh wow. सर आपसे मुझे अलग से बात करनी पड़ी। नहीं, I don't know direction. पता नहीं, थोड़ा डर लगता है ऐसे सोच के ना। But being a producer is easy then? See, producing is a very different job. Producer मैं इसलिए बनी, I think क्योंकि कहीं ना कहीं I felt like बहुत सारी बार मेरे पास कुछ बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आती थी, तो मुझे लगता था कि जो लोग ये बना रहे हैं शायद वो इसको ठीक से जस्टिफाई ना कर पाए, या क्योंकि प्रोडक्शन जो है खाली ये नहीं कि आपने मतलब जगह हायर करी और ये कर लिया, एक बहुत लंबी जर्नी होती है फिल्म के साथ और उसकी कहानी के साथ और जो लोग उससे जुड़े हैं उसके साथ, और बाज़ दफ़ा लोग ना उसमें हिम्मत हार जाते हैं या कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं या बहुत सब चीज़ों से लेके अफेक्ट हो जाते हैं। सो आई फेल्ट लाइक सो मेनी स्टोरीज या बनाते ही नहीं है क्योंकि सबका अपना अपना एक थॉट होता है ना, एंड आई फील लाइक देयर सर्टेन काइंड ऑफ स्टोरीज दैट आई रियली एंजॉय एंड आई वांटेड टू प्रोड्यूस देम, यू नो, इफ आई डिडंट फाइंड अ प्रोड्यूसर, बिकॉज ऐसे भी होता है आपके साथ, आप जाते हो कि सर प्रोड्यूस कर दो, बहुत अच्छी कहानी मुझे करनी है, बट लाइक नहीं यार अभी मुझे प्रोड्यूस नहीं करना है, सो देन यू फील लाइक नाउ व्हाट, आई डोंट नो, विल आई डायरेक्ट, हु नोस, किसको पता। हां बट यार सलीम की केटरिंग जरूर होगी हमारे साथ। आई थिंक यू विल, मुझे ऐसा लगता है। या everything. Your first film is difficult because you don't know anything. I mean, I'm sure you guys will resonate. आप देखते हो और आप एकदम you're like scared and you're like अच्छा क्या करना है, कहाँ खड़े होना है, you know, you get very very nervous. Everything. और आजकल मैं कोशिश ये करती हूँ चाहे मिथ्या हो या कोई भी मैं और फिल्म या सीरीज करूँ, मैं वो ऐसा कैरेक्टर करूँ जैसे मैं नहीं हूँ या जैसे मैंने पहले ना किया हो। जैसे मैं अभी गुजरात में थी, मैंने गुलाबी एक फिल्म की, मैं गुजराती प्ले कर रही हूँ और मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे मतलब गुजरात के बारे में मतलब इतना नहीं पता है, मैं पली बड़ी नहीं हूँ ना गुजरातियों के बीच में, तो यहाँ की भाषा सुनी नहीं है बचपन से। जैसे मेरे को नॉर्थ की कोई भी भाषा, आप हरियाणवी, पंजाबी, कुछ भी करा लो मुझसे, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप ओवर देयर, राइट, बट गुजराती इज डिफिकल्ट फॉर मी, बट ऑफ कोर्स आई डिड तरला जी की बायोपिक, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बट गुलाबी इज एन आउट एंड आउट लाइक अ Gujarati woman, and I hope all you guys will give me a lot of love for it, but it was very scary क्योंकि एक नई भाषा को सीखना, रहना यहाँ पे, लोगों से इंटरेक्ट करना, एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ तो उसका कैरिकेचर ना हो, क्योंकि the idea is to give that culture respect, is to give those people respect and their journey that respect. तो सभी डिफिकल्ट रहे हैं, so it is always a new challenge for you. I try and do that. और अगर मुझे दोबारा से कोई बोलेगा अच्छा एक और गुजराती रो, तो मैं बोलूँगी नहीं अभी रुक जाओ, कुछ और करके आती हूँ फिर।
In Maharani, you did a Bihari kind of thing. That was role very commendable role, and you had worked very hard, I think so, on your accent and all those. That was very great. Thank you so much. Thank you so much. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.